اور پیچھے اس کے آئیں تو دیکھیں 13 کی 9 سے میں پڑھنے لگی ہوں. لیکن تم خبردار رہو کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے لیے گواہی ہو. اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالہ کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں گے، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے. اور بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ قتل کرنے کے لیے حوالہ کرے گا، اور بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اب یہاں پر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ہیں ہی نہیں، ہم پہلے ہی اٹھا لیے گئے ہیں، کلیسیا پہلے ہی اوپر ہے، تو یسوع مسیح کن کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں میرے سبب سے حوالہ کیا جائے گا، تمہیں عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا؟ کن سے وہ کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح کس سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا؟ قابل غور بات ہے کہ اگر ہم نہیں ہیں، ہم تو پہلے ہی جناب اٹھائے گئے ہیں نا، ہم تو پوشیدہ آمد میں آسمان پر ہیں، تو یسوع مسیح کس سے کلام کر رہا ہے؟ یا تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے نہیں ہے، یہ کلام کلیسیا کے لیے نہیں ہے؟ اگر یہ کلام کلیسیا کے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ اور کلیسیا اگر اوپر ہے تو یہ کلام پھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ کلام عزیزو کلیسیا کے لیے ہے. اپنی اس غلط فہمی کو دور کریں. اور یسوع مسیح نے بے شک واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. اور یہاں پر ایک اور بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم خبردار رہنا. ہمیں اس وقت خبردار رہنے کی ضرورت ہے. خبردار رہنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ارد گرد کوئی خطرہ ہوتا ہے. آج یہ خطرہ ہے کہ ہمیں غلط تعلیم دی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا کلیسیا کے لیے خطرہ ہے کہ کلیسیا خوش فہمی میں رہے، کلیسیا غلط فہمی میں رہے، اور کلیسیا میں سدھار پیدا نہ ہو. کلیسیا اپنے عمل میں، اپنے کردار میں جو اس کو محنت کرنی چاہیے وہ محنت نہ کرے، بلکہ وہ اس غلط فہمی ہی میں رہ جائے کہ بھئی میں نے تو اٹھا لیے جانا ہے، میں تو یسوع مسیح کا بندہ ہوں، یسوع مسیح کی بندی ہوں، یسوع مسیح کے خون خریدے لوگ ہیں ہم تو چلے ہی جائیں گے پوشیدہ آمد. تو عزیزو یہاں پر کہیں پر بھی پوشیدہ آمد کا مجھے کوئی ذکر نہیں ہے. میں نے حالانکہ بارہا اس کی اسٹڈی کی ہے، بہت دفعہ اس کو میں نے بار بار پڑھا ہے کہ شاید کہیں سے مجھے کوئی ایسی تصدیق ملے کہ جس سے مجھے پتا چلے کہ شاید ہے کوئی ایسی بات، لیکن بائبل کہیں اس کا بیان نہیں کرتی ہے. اور یہ کیسی اچھی بات لکھی، آگے بھی اس کا لکھا ہوا ہے کہ بس جب تم منہ سجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس جگہ کھڑی ہوئی دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں، پڑھنے والا سمجھ لے. اس وقت جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر سے کچھ لینے کو نیچے نہ اترے نہ اندر جائے، اور جو کھیت میں ہو اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے. مگر ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہو اور جو دودھ پلاتی ہوں، اور دعا کرو کہ یہ جاڑوں میں نہ ہو، کیونکہ وہ دن ایسی مصیبت کے ہوں گے کہ خلقت کے شروع سے جسے خدا نے خلق کیا نہ اب تک ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی. اور خداوند ان دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشر نہ بخشتا، مگر ان برگزیدوں کی خاطر جن کو اس نے چنا ہے ان دنوں کو گھٹایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر برگزیدہ ہیں ہی نہیں، ادھر برگزیدہ زمین پر ہیں ہی نہیں، تو پھر کن کی خاطر وہ دن گھٹائے گئے؟ قابل غور بات ہے کہ نہیں؟ کلیسیا تو جناب اوپر ہے، کلیسیا تو اوپر مزے لے رہی ہے، کلیسیا تو بادشاہت میں ہے، کلیسیا تو سکون سے ہے. یسوع مسیح کن کی خاطر ان مصیبت کے ایام کو گھٹا رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے.
सो आज अजीज़ों बेशक ज़रूरत है कि हम इस बात को समझें, क्योंकि वक्त नज़दीक है कि हम यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और ये रप्चर की तालीम जो है, पोशीदा आमद में उठाए जाने की तालीम जो है, ये हमारे जहनों में, हमारी जिंदगियों में बिगाड़ का बायस है। सो इससे बचने की ज़रूरत है। सो इससे बचने के लिए ज़रूरत है कि हम खुद बाइबल का मुतालिया करना शुरू करें। बार बार मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बाइबल का मुतालिया करना शुरू करें। और उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाई देंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह करें। लेकिन तुम खबरदार रहो। अगेन ये वर्ड जो है इसको रिपीट किया गया है कि खबरदार रहो, यानी कि खतरा है कि आपने कहीं उलझ नहीं जाना, किसी पर ईमान नहीं ले आना, किसी पर यकीन नहीं कर लेना कि यीशु मसीह वहां है या यहाँ है, या यीशु मसीह पोशीदा तौर पर जनाब आपको उठा लेगा। इस बात पर आपने यकीन नहीं कर लेना। मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद, ये हमने पहले आपको बता दिया कि यीशु मसीह का जहां पर भी आप आने का जिक्र पढ़ेंगे, आपको ये जिक्र जरूर मिलेगा। ये पुराने अहदनामा में भी इसका जिक्र है, आप के ज़करिया की किताब में भी इसका जिक्र है कि जब यीशु मसीह का आना होगा तो सूरज और चांद जो है वो अपनी रोशनी देना छोड़ चुके होंगे। उस वक्त अंधेरा होगा और यीशु की तजल्ली से, यीशु के नूर से दुनिया जो है उस वक्त फिर रोशन हो। दिखा है कि जब अब इन दिनों के लिए उन्होंने जो निशानियां बताई हैं, उन्होंने लिखा है कि जब आप देखो कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करती है, तो आप देखें, और जब लड़ाइयां हों, झगड़े हों, तो आप समझ लें कि इब्ने आदम का आना नजदीक है। तो अजीजों हम देख रहे हैं कि आजकल क्या ऐसा ही नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है। और अगर हम पुराने अहदनामे का मुतालिया करें तो बेशक वहां पर लिखा हुआ है कि जब आप यरूशलेम को चारों तरफ से घिरा हुआ देखें, चारों तरफ से कौमों ने उसको घेर रखा हो, तो तब आप जान लें कि अब वक्त नजदीक है, इब्ने आदम के आने का दिन अब करीब है। तो बेशक हमने ये भी सीखा है, इन दिनों में हम मुख्तलिफ खातमों से ये भी सीख रहे हैं। और बाइबल को अगर हम खुद पढ़ने वाले हैं तो फिर हम बाइबल से तो वाज़िया तौर पर हम इस बात को जानते हैं कि बेशक यरूशलेम का आजकल यही हाल है कि उसे बहुत सी मुल्कों ने, बहुत सी मुमलकतों ने घेर रखा है, जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, जो उसके साथ जंग पर आमादा है। और बेशक ये आखिरी दिनों के बारे में एक पेशनगोई है। इससे भी हमें पता चलता है कि बेशक अब वक्त नजदीक है। और कहीं पर लेकिन इस बात का जिक्र बिल्कुल नहीं है कि कलीसिया को यीशु मसीह पहले उठा लेगा। इसी तरह थोड़ा सा मैं आपको ये इसकी तरफ भी तवज्जो दिलवाना चाहूंगी, क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो हमें ये नहीं है कि हम थोड़ा सा सीख के तो बाकी छोड़ दें। हमें पूरे तौर पर इस बात के लिए आज अपने आप को तैयार करना है, इस बात को सीख कर कि बेशक हमें रप्चर की तालीम को नहीं मानना है और अपने आप को बिगाड़ना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने कहा है कि अगर बादशाही में जाना है तो फिर रास्तबाज बनना है, फिर रास्तबाजी पर कायम रहना है। लेकिन रप्चर की तालीम हमें ये कई दफा थोड़ा सा लापरवाही की तरफ माइल करती है कि कोई बात नहीं, आप यीशु मसीह के लोग हैं, आप यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, आपकी अगर कोई थोड़ी बहुत कोताही भी होगी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके साथ यीशु का वादा है कि मैं आऊंगा और आपको साथ लेकर चला जाऊंगा। आज हमने अपनी इस गलतफहमी के कौल से निकलना है, ताकि हम हकीकत से आशना हो जाएं, ताकि हम सच्चाई से वाकिफ हो जाएं, क्योंकि सच्चाई से वाकिफ होंगे तब ही हम आजाद होंगे, तब ही आज़ादी मिलेगी, तब ही बादशाहत मिलेगी। अभी मैं आपके सामने ये भी रखना चाहती हूँ लूका 21 बाब को। वो जो हमने पीछे मरकज की अंजील में पढ़ा वो मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगी, अगली बात को पढ़ेंगे। लूका 21 बाब आप पूरा ही पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी तस्वीर नजर आ जाएगी कि यीशु मसीह के आने की क्या निशानी है।
आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपके सामने एक स्केच सा बन जाएगा, एक तस्वीर से खिंच जाएगी कि यीशु मसीह के आने का ये समा होगा, ये सिचुएशन होगी, ऐसी एक कंडीशन होगी। सो मैं पढ़ने लगी हूँ लूका 21 बाब को 10 आयत से। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और बड़े बड़े भूचाल आएंगे और जा बचा काल और मरी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे। यहाँ पर मैं अजीजों 1 मिनट रुकना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं जरा आपको इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर भी ये जिक्र आया कि आपको अदालतों के हवाले करेंगे, हुक्मरानों के सामने पेश करेंगे। किस नाम के सबब से? यीशु नाम के सबब से। तो अभी तक क्या कलीसिया के साथ ऐसा हुआ है? वो कलीसिया जो मुस्लिम ममालिक में रहती है, मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए मुश्किल है ना यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना, यीशु मसीह के नाम के साथ इन मुमलकत में रहना। तो अभी तक अगर हम पर ये नहीं आया वक्त, तो मेरा ख्याल है दूसरे ममालिक में तो अभी बिल्कुल कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कलीसिया पर अभी तक ये वक्त नहीं आया, तो फिर अजीजों यीशु मसीह किन से कलाम कर रहा है? यीशु मसीह के कहने के मुताबिक अगर अभी तक कलीसिया के साथ नहीं हुआ, हम पकड़वाए नहीं जा रहे, हम अदालतों के हवाले नहीं किए जा रहे, यीशु मसीह के नाम के बाइस पिटाई नहीं हमारी हो रही, तो फिर यीशु मसीह ये कलाम किससे कर रहा है? अब क्योंकि कलीसिया तो जनाब इन सब बातों से पहले ही ऊपर होगी। रैप्चर की तालीम के मुताबिक, पोशीदा आमद की तालीम के मुताबिक कलीसिया तो पहले ही ऊपर होगी। तो यीशु मसीह ये किन से कलाम कर रहा है? आज मैं ये इस गलत फहमी को चाहती हूँ कि हमारी कलीसिया के बहुत से लोग जो हैं वो इस गलत फहमी से निकल जाएं और जागें, बेदार हों और हकीकत से आशना, बाइबल की हकीकत को समझें, बाइबल की हकीकत को जिंदगी में अपनाएं, ताकि बादशाही में जाने के लायक हो। ना हो कि हम इस गलत तालीम की पैरवी में कहीं ये ना हो कि बादशाही से बाहर रह जाए। ये लम्हा फिक्रिया है और ये तालीम भी हमारे लिए एक खबरदारी का बाइस है। बाइबल हमें बार बार ये कह रही है, अभी हमने पिछले हवाले में 2 दफा पढ़ा कि खबरदार, तो खबरदार होने की जरूरत है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनाब कलीसिया के साथ तो ये सारा अभी जो हाल है ये कलीसिया का होना है। कलीसिया के साथ ये सारी जो सिचुएशन है वो पेश आनी है। कलीसिया के साथ ये सब कुछ होने को अभी वक्त है। तो जब कलीसिया यहाँ होगी ही नहीं तो ये किसके साथ होगा? और पीछे हमने पढ़ा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा नजात उसी को मिलेगी है। तो हम तो पहले ही ऊपर हैं, इसका मतलब हम नजात पाए बगैर ही ऊपर है, ये सब कुछ बर्दाश्त किए बगैर ही ऊपर है। अगर हम अजीजों अपनी इब्तदाई कलीसिया पर गौर करें तो बेशक हमारी कलीसिया का लहू जो है वो मसीहत की बुनियाद है। और अगर आज की कलीसिया है तो आज की कलीसिया के लिए भी बेशक ये नहीं है कि वो बगैर मुश्किलात के, बगैर दुख उठाए, बगैर तकलीफ सहे, बगैर यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु मसीह ने तो कहा है कि जब उन्होंने हरे के साथ ऐसा किया तो सूखों के साथ क्या नहीं होगा। कि यीशु मसीह के साथ जब ऐसा हुआ है, सच्चाई की तालीम देने के बायस, खुदा बाप की हकीकी मर्जी को दुनिया पर यहाँ करने के बायस, तो फिर अजीजों हम जो उसके पैरों हैं, जरूर है कि हम भी इन मुश्किलात से, इन मसाइब से, इन तकालीफ से गुजरें, तब ही हमारे लिए नजात होगी। और आज जरूरत है कि जब हम ईमानदार हैं तो हम बेशक ईमानदार होते हुए अपने आप को इस आने वाले वक्त के लिए तैयार करें। आने वाले वक्त के लिए हम अपने आप को दिन ब दिन यीशु मसीह की रफाकत में रखकर दुआया जिंदगी अपनाकर अपने आप को इस आने वाले वक्त के लिए मजबूत करें। और बेशक यीशु मसीह का ये वादा है कि वो खुद, उसका रूह हमें बताएगा कि हमें उस वक्त क्या कहना है, क्या करना है। हमें सिर्फ कायम रहने की जरूरत है। आज हमें गलत तालीमों के पैरों होकर
اپنے آپ کو غلط فہمیوں میں ڈالنے کی یا غلط قسم کے خول میں ڈھال لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے نکل کر سچائی کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔